welcome to this brand new season of Leaders of Tomorrow, the only enabling platform for small businesses. Over the past 7 years, we have understood what matters the most to you, the entrepreneur. And in year 8, we're taking head on 2 of your most pressing concerns, that of funding and mentoring. I'm Sunanda Jayaseelan. Tonight, we're bringing you a big exclusive interview with the Minister of MSME, Nitin Gadkari, sharing his vision for small businesses. But just before we bring you that interview, I want to show you some of the highlights of what we are doing this season to make it the most relevant for entrepreneurs. I'm personally excited. We hope you're too. Take a look. Leaders of Tomorrow, the enabling entrepreneurial platform on India's biggest network, is back with its 8th season. Given our rich legacy, we are bringing you the most influential voices to answer your most pressing concerns. Amidst the uncertainty in the economy, Leaders of Tomorrow is the one platform for the most credible information. We bring you stories from every corner of India, inspiring, empowering and hand-holding you to become the best in the business. The whole Indian ecosystem is changing so dramatically. Why are you still dealing in cash? Why are you keeping parallel books of accounts? Surround yourself with mentors, with advisors, with service providers. Sure. It's a key element of your success. If for nothing else, to just brainstorm your ideas. Know what your plan is, follow a plan, have that in place, make sure the plan is dynamic. I think it's also around building capability, and the capability not for today but for tomorrow. I have a reason to believe the pitching is not done properly, number one. Number two, he needs more money for expenditure, not for investment. This year, the entrepreneur stands the chance to battle it out in front of a distinguished jury and receive funding. Also, for the first time this year, India's most inspirational entrepreneurs, including Narayan Murthy, Deep Kalra, Ajay Kela, Samina Wazirali, Suresh Narayanan, Rahul Chari, A. Velumani, Piruz Khambata, Anupam Pahuja and Sangeeta Reddy are coming together on one platform to mentor and guide one-on-one our entrepreneurs and most promising startups. We also bring you a mega roadshow spanning 20 cities across India, providing a platform to engage, discuss and network with industry veterans. Come be a part of this grand journey as we champion the cause of you, the entrepreneur. All right, back to our exclusive interview then with the Minister of MSME, Nitin Gadkari. Chief Editor IPs, Mihir Bhatt, spoke to him to understand what this government's big plans are for SMEs and MSMEs. The Minister, over the course of our conversation, sounding confident that micro and small businesses will contribute up to 50% of the country's GDP, this up from the 29% right now. He also took head on the issue of lending, as well as the lending stress and the credit supply gap relief for small businesses right now, admitting that banks may not be lending as much, but that the government is keeping a keen eye really on the situation. He also discussed the launch of Bharat Craft, an online portal designed exclusively for MSMEs to help promote them on a global stage. Take a look. We have Shri Nitin Gadkari with us. Sir, thank you so much for joining us on Times Network. Namaskar. नमस्कार. And I'm happy to share with you कि Leaders of Tomorrow ये जो हमारा शो है, ये देश का एकमात्र डेली शो है जो कि MSMEs, SMEs और स्टार्टअप्स इनके ऊपर फोकस करता है. और अब हमारा 8वां सीज़न शुरू हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स आवर प्लेजर दैट यू आर जॉइनिंग अस ऑन आवर ओपनिंग शो, लॉन्चिंग शो. सर, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस समय देश में जो हालात हैं, बहुत ज़रूरी है कि जो MSMEs और SMEs हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनकी हम थोड़ी हौसला अफजाई करें, बिकॉज वी नो द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ स्लाइटली डल राइट नाउ एंड देयर आर कंसर्न्स अबाउट स्लो डाउन. तो सबसे पहले तो आप इस तबके को क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा तबका है जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा रखता है देश में, एम्प्लॉयमेंट में भी और GDP के कंट्रीब्यूशन में भी. देखिए, हमारे देश के GDP का 29% हिस्सा ये MSME से आता है. दूसरी बात, अभी तक 11 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला है.
और इतना बड़ा रोजगार निर्माण करने का सबसे इफेक्टिव कोई क्षेत्र है तो ये ही है। हमारे देश का 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है और इसलिए इस सेक्टर यानी बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसलिए इस सेक्टर की आज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों का विचार करते हुए हमने काफ़ी चेंजेस नीतियों में किए हैं। हमने ये टारगेट तय किया है कि इस 5 साल में हम देश के जीडीपी में करीब 50% का कंट्रीब्यूशन एमएसएमई और एसएमई का हम लोग कम से कम ले आएंगे। इसमें खादी ग्रामोद्योग का भी हमने जोड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्री को भी हम लोग वहाँ ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। और दूसरा, जो 11 करोड़ रोज़गार मिला इसमें हम 5 करोड़ रोज़गार नए ऐड करना चाहते हैं। और स्वाभाविक रूप से मेरा विश्वास है कि एमएसएमई में भी ताकत है। उनकी पहली 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, आजकल ई कॉमर्स शुरू हुआ है तो मार्केटिंग के लिए आपको पता होगा कि चाइना के प्रोग्रेस में अलीबाबा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राइट। अमेज़ॉन कितना ट्रेडिंग सेल कर रहा है आप मालूम है आपको। तो पहला हमने ये तय किया है कि हम एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं ई कॉमर्स का, मार्केटिंग का। उसका नाम टेंटेटिवली भारत क्राफ्ट अभी किया है। ये कब लॉन्च होगा? अभी तुरंत हो गया, तैयारी हो गई। ओके। और हमारा जेम करके जो पोर्टल है कॉमर्स मिनिस्ट्री का, उनके सहयोग से हम एमएसएमई के लिए, मार्केटिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए हम लोग ये पोर्टल शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 साल में कम से कम हम लोग इसका 10 लाख करोड़ तक टर्नओवर कर पाएंगे, इतना इसमें पोटेंशियल है। क्योंकि इसके थ्रू हम लोग एमएसएमई को बहुत प्रोत्साहित करेंगे। जो सेकंड प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि एमएसएमई को जो वो पेमेंट देते हैं, माल सप्लाई करते हैं, तो पेमेंट नहीं मिलता। इससे वर्किंग कैपिटल का इरोजन हो जाता है और वो बेचारी स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो जाती है। तो 200 एमएसएमई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हुई है। तो अब कैपिटल मार्केट से भी वो पैसा खड़ा करेंगे। और उसके साथ साथ हमने एक स्कीम की है कि जैसे एक एमएसएमई कोई पब्लिक सेक्टर के बड़े कंपनी को अगर अपना मटेरियल सप्लाई कर रही है तो उनके क्रेडिट पर ये मार्केट से, बैंकों से जो लोवेस्ट इंटरेस्ट पे पैसा होगा वो बिल उनके क्रेडिट पर जिसको माल सप्लाई किया है वो एमएसएमई को दे देंगे। उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम रहेगी। तो इसके कारण भी उन्होंने अभी तक 9,000 करोड़ का किया है। अब इसको बड़े प्रमाण पर कर रहे हैं। ये दोनों बातें जो है बहुत अच्छी है। तीसरा, हमने इसका और एक प्रॉब्लम है कि ये सब सुझाने के लिए 45 दिन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इनका पेमेंट मिलना चाहिए। इसके लिए हमने एक समाधान पोर्टल खोला है और समाधान पोर्टल में अभी करीब 48,000 केसेस आई है, पर इससे भी ज़्यादा समस्या है। तो राज्य सरकार के जो रेवेन्यू लॉज हैं उसके अंदर में 45 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो उसी का उपयोग करके हम लोग कानूनी उसके जांच कर रहे हैं कि ऐसा कोई सोल्यूशन निकाले कि उसके ऊपर हम कठोर कार्रवाई कर सकें। ताकि इस प्रकार से अगर वर्किंग कैपिटल में अगर साल 1.5 साल पैसे ही नहीं मिलेंगे तो ये तो यूनिट खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तीसरी बात, अभी वर्ल्ड बैंक, KFW और ADB तीनों ने कुछ सेक्टर्स चुने हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई है डिटेल में और उनसे भी वो फाइनेंस देने के लिए तैयार है। KFW ग्रीन एनर्जी में, ज़्यादातर बायो फ्यूल्स में, इसमें वो देंगे। और वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ सेक्टर्स ये किए हुए हैं और ADB के भी हैं। तो ये पैसा रूट करते समय हम ये सोच रहे हैं कि इसके लिए हम बैंकों का तो उपयोग करें ही, पर इसका जो फाइनेंशियल अप्रेजल है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा दे रही है उनकी अप्रूवल जो प्रोफेशनल एजेंसी होगी उनके द्वारा करेंगे। और उसके साथ साथ इसको रिफाइनेंस करने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक, NBFCs, ये जो छोटी कंपनी ये है, फिर कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट सोसाइटीज़, इनका तक उपयोग करके ये पूरा पैसा उनको मिले, ये कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो कैपिटल उनको उपलब्ध करा के देना। दूसरी बात, उन्होंने किए हुए प्रोडक्शन के लिए ई कॉमर्स के द्वारा मार्केट में ला कर देना। और तीसरी बात जो है कि पेमेंट में उनको मिलना चाहिए जल्दी। इसके बारे में 3 मोटे तौर पर बातें हैं।
और दूसरी ओर लॉजिस्टिक कॉस्ट, पावर कॉस्ट कम करने की कुछ इनोवेटिव योजना भी हमने तैयार की है। तो बाय हमारा मिशन यही है कि हमारे देश के सकल उत्पादन में 50% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का हो, 5 करोड़ नए रोजगार इस 11 करोड़ के अलावा 5 साल में खड़े हो, एक्सपोर्ट जो है वो 40% की बजाय 50% पर हम लेकर जाएं, और हमारी इकोनॉमी का बैकबोन ये जो एसएमई एमएसएमई है इसको प्रोत्साहित करें। We'll have to take a quick break on that note, but on the other side, we'll continue bringing you that exclusive interview with Nitin Gadkari. Do stay tuned. Welcome back. You're with us here on Leaders of Tomorrow. Tonight on the show, part 1 of an exclusive sit-down conversation with Nitin Gadkari, Minister of MSME. अगले 5 साल में अगर 50% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एमएसएमईज और एसएमईज का आना है, तो ये अपने आप में ऑलमोस्ट करीब $2 ट्रिलियन से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा इकोनॉमी में और जॉब्स में भी। फ़िलहाल जो आर्थिक स्थिति है देश की, और मैं मंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वी आर स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इसमें कुछ आपको लगता है स्टिमुलस या इस तरह के कदम उठाने की ज़रूरत है? बिकॉज़ योजनाएं अभी भी हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने खुद जो 59 मिनट में 1 करोड़ तक का लोन अप्रूव करने की योजना घोषित की थी वो है, लेकिन एक तो बैंक्स की तरफ से लेंडिंग उतनी हो नहीं रही है जितनी होनी चाहिए, खासकर इस सेक्टर को, और दूसरा जो कानून है उसका भी शायद इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, खासकर ये जो पेमेंट डिले की आपने बात की। देखिए, उसके लिए अभी कानून तो बना नहीं है। ईज़ ऑफ बिजनेस में जो लाइसेंस परमिट राज था उसमें काफ़ी हमने सुधार किया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि ये जो 59 मिनट में लोन देने की बात थी, मैंने इसका रिव्यू लिया तो लोन मंजूर हो रहा है पर डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है। तो मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी जो बैंकिंग को कहा आप इसका रिव्यू करिए, तुरंत डिसबर्समेंट होना चाहिए। तो ये बात ज़रूर है कि आज के इस समय में थोड़ी बहुत कुछ कठिनाइयाँ भी है, पर इस पर मात करके सेक्टर को फाइनेंशियली कैपिटल की मदद करने के लिए नए नए मार्ग निकाले। ये जो आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 200 कंपनी रजिस्टर हुई पहली बार, ये 200 के बजाय 50,000 हो सकती है। तो ये जो आम आदमी है जो बैंक में डिपॉजिट रखते हैं और आजकल हमारे यहाँ जैसे इंश्योरेंस, पेंशन और स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स, ये 3 बड़ी इकोनॉमी है जो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन सबको भी एमएसएमई से कैसे जोड़ा जाए, और एमएसएमई के साथ साथ मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ये है कि एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल में, जैसे हनी की बात है, अभी हमारे यहाँ हमने केवल 15 करोड़ हनी को दे रहे थे, अभी इस साल हम 100 करोड़ दे रहे हैं और 20 प्रकार का हनी तैयार कर रहे हैं। और हाई एटीट्यूड का हनी जो है वो 7, अभी अमेजोन के इस पर जो है उनके साइट पर वो 7,000 रुपये लीटर का है। तो उसको ब्रांडिंग करके उसको एक्सपोर्ट करना। फिर हनी का बिस्किट, हमारे यहाँ वर्धा में गोरस पाक करके बिस्किट तैयार होता है, गाय का घी और हनी इसका उपयोग करके। अच्छा, अब मैं कोशिश करूँ कि बड़े कंपनी को बोलकर वर्ल्ड मार्केट एक बिस्किट हनी का और इसका कैसे बनाए, और हनी के चॉकलेट बनाने की बात हो रही है। और इतना ही नहीं, तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी मैंने नागपुर में हमारे यहाँ मदर डेयरी को कहा था कि संतरे की बर्फ़ी बनाओ, ऑरेंज, उनने बहुत सुंदर बर्फ़ी बनाई और मैं उसको लॉन्चिंग करने वाला हूँ अभी। तो वो इससे जो मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है छोटे छोटे लोग, उनको काफ़ी बड़ा मिलेगा। संतरे वाले किसानों का 25% संतरे का जूस उसमें जाएगा और एक बहुत बड़ा ब्रांड तैयार हो रहा है। राइट। तो ये अभी ये खुल्लड़ है, हमने 2 स्टेशनों पर चाय पीने के लिए वो जो प्लास्टिक के ग्लास के बजाय वो मिट्टी के ये किए। अभी मैंने पीयूष गोयल जी को पत्र लिखा 100 स्टेशन पर इसको मैंडेटरी करो। और जो स्टेट ट्रांसपोर्ट है जो अपने यहाँ महाराष्ट्र में एसटी जैसी है, तो मैं अभी महाराष्ट्र के सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को लिख रहा हूँ कि आप आपके इस पर जो चाय के स्टॉल है उनको आप
ये मैंडेटरी करिए कि वो खुल्लड़ यूज़ करे वो। तो ये क्या है, कुम्हारों को काम मिलेगा। राइट। फिर हमने बाम्बू की अलग अलग चीज़ों के बारे में कर रहे हैं। फिर कचरे से बायो CNG बनाना, बायोमास से बायो CNG बनाना, म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके बनाना। तो कहीं ना कहीं हमने एग्रीकल्चर, रूरल, इसमें ट्राइबल, सोशल वेलफेयर और एग्रीकल्चर तीनों मिनिस्ट्री से मदद मांगी है। उनने भी पैसा दिया है, देने का कबूल किया है। तो ओवरऑल एक तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, MSME, इसका विकास हो, फिर दूसरी ओर खादी ग्रामोद्योग कमीशन का उपयोग करके रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर में हम लोग किस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। राइट। वेस्ट टू वेल्थ में क्या कर सकते हैं, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है। फिर हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, खादी है। तो हम इन प्रोडक्ट को वर्ल्ड लेवल पर ले जाना चाहते हैं और मुझे लगता है हमारा जो भारत क्राफ्ट मार्केटिंग पोर्टल बनेगा ई-कॉमर्स का, तो एक काफ़ी बड़ा हम इसमें हमको उपयोग होगा। ये सिर्फ B2B होगा या B2B प्लस B2C होगा? जो भारत क्राफ्ट पोर्टल होगा वो सीधा कस्टमर्स को भी बेच सीधा कस्टमर, जैसे ये अमेज़न काम कर रहा है या अलीबाबा कर रहा है, उसी धरती पे होगा। लेकिन ये सिर्फ SMEs और MSME से ही सोर्स करेगा, उन्हीं के लिए होगा। यस। अभी भी जो बैंक का मैंने प्रश्न उठाया था, उस पर मैं आपसे सुनना चाहूँगा। और ये जो देश के जो SMEs हैं, MSMEs हैं, जो कि ये शो देख रहे हैं, वो शायद आपसे ये सुनना चाहेंगे कि इस समस्या को एड्रेस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा लोन अप्रूव हो रहा है 59 मिनट में, लेकिन उसके बाद अगर डिसबर्सल में बहुत टाइम है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने उनकी और मेरे उपस्थिति में हमने MSME के ऑर्गेनाइजेशंस को सुना और ये बात जरूर है कि इसके बारे में 59 मिनट में लोन सैंक्शन किया पर डिसबर्स नहीं किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकिंग सेक्रेटरी को कहा कि इसका रिव्यू करो। तो हम लोग हमारे तरफ से इसका फॉलोअप कर रहे हैं। स्थितियाँ में थोड़ी सी कठिनाइयाँ हैं पर हम जल्दी इसमें सुधार करके बैंकिंग सेक्टर को भी, क्योंकि उनको भी पैसा देना है, अगर नहीं देंगे तो वो प्रॉफिट कहाँ से मिलेंगे, बिजनेस कहाँ से होगा। राइट। तो ये थोड़ा सा माहौल सुधारने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को हमने भी अनुरोध किया है और मेरा विश्वास है कि नज़दीक के समय में इसमें से निश्चित रूप से मार्ग निकलेगा। That's all we have on part 1 of that Big Leaders of Tomorrow exclusive interview. Tomorrow, we will be back with part 2 of this interview. Nitin Gadkari addressing concerns as far as the economy is concerned, particularly in the auto and textile sectors. Also giving us his advice for entrepreneurs to really manage macroeconomic changes and the stress right now, and why he thinks innovation as well as research are going to be the key for small businesses. Leaving you with a snippet of what's in store tomorrow night as we end tonight's show. Our contact details also coming up in just a bit. Take a look. इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। आने वाले समय में इनोवेशन को, रिसर्च को महत्व है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ एंड कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ।